اب ہم بات کر لیتے ہیں ان بچوں کی جو کہ ماں باپ کا فخر ہوتے ہیں اور جب وہ ان کی خواہش پوری کریں تو ماں باپ کی خوشی بالکل دیدنی ہوتی ہے. لیکن آج ہم آپ کو جس باہمت طالبہ سے ملوانے والے ہیں اس نے مرحوم والدین کی خواہش کو پورا کیا ہے. پشاور یونیورسٹی کے شعبہ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں MBA کی طالبہ نے اسپتال میں امتحان کی تیاری کرتے کرتے گولڈ میڈل حاصل کر لیے. جناب بینش جاوید جن کی والدہ کینسر کی مریضہ تھیں، جن کی خواہش بیٹی کو اول پوزیشن دلوانا تھا، ماں کی خواہش پوری ہو گئی لیکن وہ خود دنیا میں موجود نہیں ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بینش کے جو والد ہیں وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. بہت زیادہ مشکل حالات اور مشکل وقت ہوتا ہے کسی بھی اولاد کے لیے، وہ چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، اور ان حالات میں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنا اور پھر گولڈ میڈل حاصل کر لینا. آپ سوچیں کہ یہ کتنی ہمت والی، کتنی حوصلے والی، کتنی چیلنجنگ والی بات ہے. اور یقیناً بینش کے والدین آج ایک ہم سے بہتر جگہ پر ہیں اور وہ بینش کو دیکھ کے بڑا فخر محسوس کر رہے ہوں گے. تو بینش نے آج ہمیں جوائن کر لیے پروگرام میں، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم بینش، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، گڈ مارننگ. تھینک یو جی، میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بینش سب سے پہلے تو آپ کو ہم سلام پیش کریں گے کہ اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہی عطا کرتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی ٹریجڈی سے گزرنے کے بعد آپ اپنے آپ میں رہیں، اپنی سینسز میں رہیں اور اپنے ایک تعلیمی سفر کو جاری رکھیں صرف اس لیے کیونکہ آپ کے والدین یہ چاہتے تھے. یہ بڑا مشکل کام ہے. مجھے یہ بتائیں گے جو کامیابی آپ کو ملی ہے، سب سے پہلے تو ڈیڈیکیٹ کسے کریں گے اس کو، یہ آپ کے نزدیک اہمیت کیا رکھتی ہے، اور اس سفر میں جو مشکلات ہیں میں چاہوں گی آپ کی زبانی ہمارے ناظرین سنیں. بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اور سما ٹی وی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں اپنی سکسیس سٹوری جو ہے وہ سب کے سامنے رکھوں. اور یہ ایک انسپریشنل سٹوری ہے، نو ڈاؤٹ، ان دا سینس کہ ایک انسان جو اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے، وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان جو اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے رخصت کر کے آنکھوں سے، اور پھر وہ آتا ہے اور وہ پھر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے اور پھر وہ پیپر دیتا ہے اور پھر وہ اس میں ٹاپ بھی کر جاتا ہے. تو واقعی یہ حوصلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے. ہم بیسیکلی اگر میں بات کرنا چاہوں تو بینگ اے فیمیل اور گرلز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی ایموشنلی جو ہوتی ہیں ویک ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ لائک لڑکیاں جو ہوتی ہیں اگر اللہ نہ کرے ان کا کوئی عزیز ان سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ روتی ہیں دھوتی ہیں. مرد جو ہوتا ہے وہ خود کو کمپوز رکھتا ہے، لیکن میں نے ایٹ اے ٹائم بیٹا اور بیٹی دونوں کا رول نبھایا. میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہاسپٹلس میں. مطلب مجھے آئی اسٹل ریممبر کہ میں آپ کو مطلب ایک بات کہوں کہ جب میرے والد میرا ایڈمیشن کروا رہے تھے پشاور یونیورسٹی میں، تو میں نے کبھی کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھا تھا. تو میرے والد کو بہت زیادہ ٹرسٹ تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ نہ صرف کوئی ایجوکیشن میں پڑھے گی بلکہ وہاں سے میڈل حاصل کرے گی. اور آئی اسٹل ریممبر کہ وین آئی واز ہیونگ اے لاسٹ پیپر آف سیکنڈ سیمسٹر تو آئی گاٹ اے کال فرام ہوم اور مجھے کال آئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. وہ بہت زیادہ شاکنگ نیوز تھی میرے لیے. اور میں گئی بھاگ کے، کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کس ڈریس میں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. میرے ہاتھ میں بک تھی. ہاں، یہ اتنا مجھے ہوش نہیں تھا کہ میرے جو ہاتھ میں بک تھی وہ بک بھی میں ساتھ لے گئی. اور میں وہاں گئی، میں نے اپنے والد کو دیکھا اور میں ایک لوتی بیٹی ہوں اور میں بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی. میں اپنے والدین میں سب سے زیادہ والد کی بہت زیادہ کلوز تھی. ہم بہت بیسٹ فرینڈس تھے. تو میں نے جب ان کو رخصت کیا آن دا ویری نیکسٹ ڈے میں آئی. صبح 9 بجے میرا پیپر تھا. صبح ان کا 6 بجے جنازہ ہوا اور میں 6 بجے وہاں سے نکلی اور 9:30 پہ میں پشاور پہنچی. ٹریول کر کے آئی میں ہری پور سے. اچھا. تو پھر میں نے اپنا پیپر دیا اور پھر میں نے سیکنڈ سیمسٹر میں بھی ٹاپ کیا. لیکن آزمائشوں کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. تھرڈ سیمسٹر میں میری مدر کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا اور اس میں یہ تھا کہ گولڈ میڈل کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ along with high CGPA آپ کو ہر پیپر آپ نے اٹیمپٹ کیا ہو. لائک اگر فار ایگزامپل اگر آپ ایک پیپر نہیں بھی دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اگر آپ وہ میک اپ میں دیتے ہیں تو آپ گولڈ میڈل کے لیے ایلیجیبل نہیں رہتے. تو مجھے تو اپنے والدین کا خواب پورا کرنا تھا، خاص طور پہ مجھے اپنے والد کا خواب پورا کرنا تھا. تو آئی اسٹل ریممبر کہ میری امی کی اندر سرجری ہو رہی تھی اور میں باہر بیٹھ کے اپنا لیڈرشپ کا پیپر پریپیئر کر رہی تھی اور ڈاکٹرز بھی حیران ہو رہے تھے کہ ایک ایسی بچی یا ایک ایسی لڑکی یہ بہت ہی جس کی ماں غیر یقینی سی صورتحال ہے.
पहले वालिद का बिछड़ जाना, फिर वालिदा की इस पोजीशन के अंदर आपने पेपर्स की तैयारी की। आम तौर पर कोई भी इंसान, मजबूत से मजबूत इंसान एक डीप डिप्रेशन में जा सकता है, बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देता है। किस तरह से, क्या ऐसी मोटिवेशन थी, क्या जहन में ऐसा चलता था जो आपको अपने इस गोल पर स्टिक रखता था कि नहीं जी मुझे गोल्ड मेडल लेना है, जो मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं वो मेरे साथ हैं, चाहे वो मेरे साथ खुद फिजिकली मौजूद हैं या नहीं? वो मोटिवेशन क्या थी, वो फीलिंग्स क्या थी? मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह से किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपसे ये सवाल पूछूं। देखिए, फीलिंग्स ये थी ना कि कोई नहीं जानता कि उसकी ज़िंदगी कितनी लिखी है, और एक ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक भी हो और जो कैंसर पेशेंट भी हो, तो उसके लिए ज़िंदगी के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जब मेरी अम्मी ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा, बेटा पेपर प्रिपेयर करना, माँ बाप आते जाते रहते हैं, अल्लाह, और माँ बाप सबके जाते हैं। तो ये चीज़ जब मेरी अंदर अम्मी का ऑपरेशन हो रहा था और वो मैं लाइक आई वाज होल्डिंग पेपर लाइक दैट, और लीडरशिप का पेपर पढ़ रही थी, और मैं जस्ट रो भी रही थी और मैं पेपर भी पढ़ रही थी कि यार मुझे अपने माँ बाप की बात का मान रखना है। लाइक मैं हैरान हूँ, आपके प्रोग्राम से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि माँ बाप बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, नो डाउट, पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन इनका ये अक्सर इम्पैक्ट ये क्रिएट किया जाता है कि शायद माँ बाप को ये लगता है कि यही बच्चे बड़े होके हमारा कल को साया बनेंगे। लेकिन मेरे माँ बाप जब जा रहे थे तो उनको पता था कि मैं उनका साया नहीं बन सकती, ठीक है, दे वर अबाउट टू डाई, दे वर डाइंग, और लेकिन फिर भी जाते जाते उनको मेरे मुस्तकबिल की इतनी फिक्र थी, तो मैं कैसे मोटिवेशन ना लेती, कैसे मैं डीमोटिवेट हो जाती, मैं कैसे डीमोरलाइज हो जाती। तो मुझे वो चीज़ मोटिवेट करती थी कि लाइक मेरे पेरेंट्स, लाइक मेरी मदर जब ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी और उनको पता था कि मेरा पेपर है, तो मुझे कही थी, बेटा कुछ भी हो जाए पेपर ज़रूर तुमने देना है। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी, और मैंने पेपर्स दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने माँ बाप की, अपने मैं कहती हूँ कि आपके लिए कोई ब्लेसिंग है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरने के बाद भी आपने पूरा फोकस रखा अपने काम पे, क्योंकि सिर्फ ये था कि आपकी वालिदा कहती थी, आपके वालिद साहब का ख्वाब था कि आप गोल्ड मेडल लें। वो कहते हैं ना कि एक लम्हा आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब आप सोचते हैं कि जिस इंसान की कमी है ना आपको, काश वो मेरे सामने मौजूद होता। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं, लेकिन उनमें बड़ी ज़्यादा तलखियाँ मौजूद होती हैं। यकीनन जब आपको गोल्ड मेडल मिला होगा, हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, उस वक्त आप ये चाहती होंगी कि माँ बाप, क्योंकि माँ बाप तो आपके लिए दुनिया है ना, इस दुनिया में उनसे तो बढ़ के कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। तो वो क्या चीज़ थी जब गोल्ड मेडल आपको मिल रहा था, आपके गले में पहनाया जा रहा था, अम्मा की, अब्बा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आई और दिल किया कि बस माँ बाप हों, मैं जाके फ़ौरन से गले लगा लूँ? क्या माहौल था, क्या? मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था जब मुझे कामरान बंगत साहब, मीन्स एजुकेशन मिनिस्टर, जब वो गोल्ड मेडल पहना रहे थे, उस वक्त रोना आ रहा था कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स जब मुझे भेज रहे थे और गोल्ड मेडल की वो मेरे सामने जो है अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब तुम्हें गोल्ड मेडल सबके सामने मिलेगा ना, तो हम खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। तो मुझे, जब मैंने ऑडियंस में देखा ना, जब मुझे मेडल मिल रहा था, जहाँ पे पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए थे या जहाँ पे गेस्ट के लिए सीट्स एलोकेटेड थी, तो वहाँ मुझे अपने माँ बाप की रूहें नज़र आई। लाइक साइंटिफिकली ना देखे ना तो मेरे जज्बात को अगर देखा जाए तो मुझे अपने माँ बाप की रूहें नजर आई, तो उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू नजर आ रहे थे जो वो मुझे मेडल पहनते हुए देख रहे थे। और जब मेरे वालिद साहब का नाम जो है वो प्रोनाउंस हो रहा था और अनाउंस हो रहा था सबके सामने, तो मेरे ख्याल में मैंने जंग जीत ली। मैंने अपने माँ बाप की बात मान रख के मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी और जब उनसे मिलूंगी तो वो उनको भी बड़ा फ़ख्र होगा। उनको अभी भी फ़ख्र है बनिश, अभी भी वो यकीनन हमसे अच्छी जगह पर है और वो आपको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि एक इतनी अच्छी, इतनी काबिल बेटी। वो कहते हैं ना कि वालिदैन का तो एहसासा होता है कि अगर 10 औलादों में से एक औलाद ही नेक निकल है तो वो कहता है कि हमें दुनिया में जन्नत मिल गई। अच्छा, कभी आपने ये सोचा था कि जब शुरू में आपने अपने करियर का आगाज़ किया होगा, अपनी पढ़ाई का सफ़र आपने शुरू किया होगा, तो आप कह रही हैं ना आपके वालिद साहब आपको लेके गए, एडमिशन उन्होंने दिलवाया, आपके वालिद साहब का ये ख्वाब था कि आप गोल्ड मेडल जीतें। क्या आपने कभी सोचा कि मैं जिनके लिए ये गोल्ड मेडल ले रही हूँ या जिनके लिए मैं इतनी मेहनत करी हूँ, कभी भी तो ये सोच किसी बच्चे के ज़हन में नहीं आती ना कि जब मैं उस स्टेज पे खड़ी होंगी और ये चीज़ मुझे मिल रही होगी तो सामने वो मौजूद नहीं होंगे तालियां बजाने के लिए, सामने तो वो हस्तियाँ ही नहीं होंगी जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की है?
बिल्कुल ऐसी सोच आई भी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो मुझसे दूर नहीं गए, वो अभी इस स्टूडियो में भी मेरे साथ हैं, उनकी दुआएं मेरी हिफाजत करती हैं, उनकी दुआएं मुझे कामयाबियों की तरफ गामजन करती हैं। मैं नहीं जानती कि मरने के बाद क्या होता है, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन जहाँ तक मेरी फीलिंग्स की बात है वो आज भी मेरे साथ हैं। सिर्फ उन्होंने पर्दा कर लिया है, अल्लाह के पास चले गए, लेकिन उनकी दुआएं आज भी मेरी हिफाजत कर रही हैं। बिल्कुल, वो आप जानती हैं कि वो कितनी ज़्यादा, उनकी दुआएं, उनका साथ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा बिनिश, वालिदैन की रूहानी सपोर्ट आपके साथ हमेशा से है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि आप इकलौती हैं, बहन भाई नहीं हैं, किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, किसका सबसे ज़्यादा साथ रहा इस पूरे सफ़र के दौरान? वैसे मैं इकलौती बेटी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक भाई हैं। अच्छा। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग तो साथ तो किसी का नहीं था, सपोर्ट सिर्फ पेरेंट्स की थी, और उसके बाद खुद ही सेल्फ मेड हूँ। सही। और बिनिश, वो कहते हैं ना कि आप एक लड़की होके इतनी चीज़ें फेस कर रही हैं, इतने चैलेंजेस है जिसको आप देख रही हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। मुझे ये बताएं कि अम्मा अब्बा की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? वो कहते हैं ना कि जब कोई शख्स आपसे बिछड़ जाता है तो आप तन्हाई में हो, वो आप चाहे रात को सोने से पहले याद करें या अपने आप को शीशे में देख के आपको याद आ रही हो, माँ बाप की, स्पेशली माँ की वो कौन सी बात है जो कि जब याद आती ना तो बेसाख्ता आंखों से आंसू भी तारी होते हैं और दिल बस फटने वाला हो जाता है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच अगेन फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। जब मैं पेशावर से जाती थी मतलब लाइक छुट्टियों पे ड्यूरिंग सेमेस्टर और इस तरह से, तो सबसे पहले जब अम्मी जो थी वो जैसे ही मैं दरवाजे में इंटर होती थी अपने घर के, तो वो मेरा माथा चूम लेती थी, मुझे गले लगा लेती थी। इट्स बिन मोर देन, मैं अब क्या कहूँ कि इट्स सच अ लॉन्ग टाइम कि वो गले नहीं लगाया मेरी माँ ने, मुझे कॉल नहीं की, बेटा कहाँ पहुँची हो, बेटा कुछ खाया या नहीं खाया, और वो माथा नहीं चूमा। लाइक वो लेडी जो मेरा माथा चूमती थी जब मैं लाइक सेमेस्टर में स्कोर करती थी, आज गोल्ड मेडल मैंने लिया है और वो मेरा माथा नहीं चूम सकती। तो इंशाल्लाह यहाँ से होने के बाद, फारिग होने के बाद मैं उनकी कब्र पे जाऊँगी और वहाँ पे दुआ करूँगी और ये मेडल उनकी कब्र पे पहनाऊँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिनिश, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह स्ट्रॉन्ग रखे, आपको हिम्मत हौसला अता फरमाए। बिनिश, हम चाहेंगे कि वो लोग जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, उनके साथ रहते हैं, मौजूद हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर कहा जाए कि उस तरह के वो कदर नहीं कर पाते हैं, आपके माँ बाप आपके साथ मौजूद नहीं है और आप जानती हैं कि माँ बाप की वैल्यू क्या है, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगी, जो हमारे यूथ हैं, प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करें। वंस दे आर गोन दे वुड नेवर बी बैक। तो अपने माँ बाप की बहुत कदर करें। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर औलाद ये सोचती है कि माँ बाप हम पे इसलिए इन्वेस्ट करें कि कल को हम उनका सहारा बने, तो ये मेरी स्टोरी आपके सामने है। बिल्कुल ठीक। मेरे वालिदैन फौत हो रहे थे, मर रहे थे, लेकिन उनको फिर भी मेरे मुस्तकबिल की फ़िक्र थी, ठीक है, मेरे करियर की, मेरे फ्यूचर की फ़िक्र थी। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि माँ बाप की मोहब्बत लाजवाल होती है। तो काइंडली अपने माँ बाप की कदर करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको पछताने का भी मौका ना मिले। और वही बात है ना कि माँ बाप की मोहब्बत का कोई नेमुल बदल ही नहीं है, यानी उनकी मोहब्बत बेलौस है, कोई और ये वो मोहब्बत नहीं जिसमें आप ये कहें कि कोई गिव एंड टेक वाला मामला है। नहीं, माँ बाप की मोहब्बत वो है कि माँ बाप ने बच्चे से मोहब्बत की ना, तो उन्हें इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा बिनिश, मुझे ये बताएं कि आप आगे ज़िंदगी में क्या सोचा है, आपने क्या करना है, कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जो कि आपने सेट किए हैं कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, मुझे इस मकाम तक पहुंचना है कि और मेरे माँ बाप मुझे देख के खुश हों? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा लाड प्यार में पली थी अपने पेरेंट्स की। मैंने आपसे कहा मैं इकलौती बेटी थी, तो लेकिन जब मुझ पे ये मुश्किल वक्त आया और जिस तरह मैंने परफॉर्मेंस दी अपनी, और जिस तरह मैंने स्ट्रेस को हैंडल किया और मैंने हिम्मत और बहादुरी का बेसिकली मुजाहिरा किया, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। मुझे अपने अंदर ये एबिलिटी नज़र आई है और इंशाल्लाह मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके इस मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ, ताकि मेरे माँ बाप को मुझ पर और भी फ़ख्र हो। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये एक नई कहानी का आगाज़ है। ये मेडल एक
एक पहला स्टेप है जिस पे मैंने पाँव रखा है। इंशाल्लाह भी आगे बहुत जाना है और आप सब की और पूरे कौम की जो मुझे देख रहे हैं, मुझे आप सब की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप सब ने मेरे लिए बहुत दुआएं करनी है। बिल्कुल, हमारी और हमें देखने वाले तमाम तर जो नाजरीन हैं उन सब की दुआएं आपके साथ मौजूद है। बेनिश, आपके सब्जेक्ट के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जिस सब्जेक्ट में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, इस सब्जेक्ट के हवाले से बताइएगा, ये कितना मुश्किल है, इसका स्कोप क्या है और क्या सोच के आपने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया अपने करियर के लिए? बिल्कुल, थैंक यू सो मच अगेन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने जो किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है और इसका काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी इसका स्कोप है। ये बेसिकली हम आजकल जो हमारा मुल्क फेस कर रहा है प्रॉब्लम, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, चाहे वो सोशल क्राइसिस हैं, चाहे जो भी आप देख लें, तो वो ये है कि हम जो पॉलिसी बनाते हैं हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमारे यहाँ जो है पॉलिसी मेकिंग का जो है ना वो कॉन्सेप्ट बहुत कम है और क्लियर नहीं है। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इट्स ऑल अबाउट द पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम MBA के भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें लीडरशिप, हम ये सारी वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसलिए चूज़ किया कि मैं देखना चाह रही थी कि ये हम पॉलिसी पे काम करें। इस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह डिग्री लेके, और जो मैंने डिग्री ली है और इंशाल्लाह फर्दर इसको कंटिन्यू करके आगे PhD MPhil करके और सिविल सर्विसेज अगर अल्लाह करे हो जाता है तो ये चीज़ मुझे बहुत फ़ायदा देने वाली है इंशाल्लाह। क्योंकि जब तक पॉलिसी आप प्रॉपरली एनालाइज करके और ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करते तो पॉलिसीज़ बनाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लॉ जो है वो 1857 से बनता हुआ आ रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको बहुत कम लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अमलन काम होना बेहद ज़रूरी है। पॉलिसीज़ बन जाना और फिर उन पॉलिसीज़ का बन के दब जाना सफ़ों में, ये कोई काम नहीं है जब तक उस पर अमलन काम नहीं होता। बेहद शुक्रिया बेनिश, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल होने के साथ साथ आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मशअल राह भी हैं।